Hi everyone, welcome to Percham. This is Neha Agarwal. So, I have come after a long time because I am not well. I am still not well. So, I have some problem in my leg, and that is why we are taking class in this mode, the sitting mode. So, this class of sitting mode will be going on for 4 or 5 more lectures. I think I will be good in another 10-15 days. Okay. So, for today's topic, we are doing the important MCQs of the important national parks. Okay, not the normal national parks, but the most important national parks I have taken, and we will talk about the flora and fauna and also about the location, everything. Okay, so let's begin. So, our first question, as you can see on the screen, is which majestic national park, known for its one horned rhinoceros and lush grasslands, is located in Assam? Okay, so in these options, it is very easy to identify because you have the Kaziranga National Park. But let me tell you, in Assam, we have two national parks. Rather, we can say we have one national park and one wildlife sanctuary, which is very much related to one horned rhinoceros. So, Kaziranga National Park is also a tiger reserve, but we have another wildlife sanctuary, and that is Pobi Tora Wildlife Sanctuary. Okay, so it is Pobi Tora Wildlife Sanctuary. So, Pobi Tora Wildlife Sanctuary is actually having more density of the one horned rhinoceros, but the quantity, the numbers are more in the Kaziranga National Park. So, if you have questions in regard to one horned rhinoceros, always answer Kaziranga or Pobitora Wildlife Sanctuary, whatever is given in the options. Okay, so let's move on to question number two. Before moving on to question number two, you can take the discussion from here. Like, Kaziranga National Park is located in the Golaghat and Nagaon districts of Assam. It was declared a national park in 1974, and it is also a UNESCO World Heritage Site because it houses two-thirds of the world population greater one horned rhinoceros, and because of that, it is also taken as UNESCO World Heritage Site. It is the largest undisturbed area in the Brahmaputra Valley floodplains, and vegetation is kind of mixed, wet alluvial grasslands, alluvial because of the Brahmaputra Valley and its tributaries, and also semi evergreen forest because of the rainfall decreasing up to 150 cm annually. Okay, so these are some of the information. Moving on to the next question. So, next question says this vibrant marine national park in Tamil Nadu protects coral reefs and playful dolphins. So, as soon as you get coral reefs or dolphins, you need to understand that this national park will be a marine national park. And marine national park present in Tamil Nadu is Gulf of Mannar Marine National Park. So, this will be your answer, Gulf of Mannar Marine National Park. So, if this is the map of India here and this is Tamil Nadu, this is the part of Marine National Park. Okay, so this is how I showed you. From here, you can take the information about the Gulf of Mannar Marine National Park, and that is the park encompasses 21 islands, and it is known for very rich coral reefs, diverse marine life, including the dolphins, the sea turtles, the dugongs. Do you know what are dugongs called? They are sea cow. Okay, they are also known as sea cow, and its stunning seascapes. Obviously, it is very near to the Ramananthapuram or Rameshwaram part of India. Okay, so before moving on to the lecture, I want to tell you that please join this course, the SSC Geography Target 2024 course. Why you need to join this? This course has been covered in a very detailed manner. So I have covered the geomorphology, oceanography, climatology, together with Indian geography and also environment topics like national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, tiger reserves, etc. So this is not only going to help you in SSC exam, but it is also going to help you in all one day exams like CDS, AFCAT, and then you have different exams related to state PCSs, also the CUET guys. Okay, so it is going to help you. So this is a separate course for SSC geography, but we have also a course which is combined GK.
in which you will be getting history, geography, economy, polity, everything. The course is very reasonable. It will give you a great insight. You will be having the recorded lectures, downloadable PDFs, everything what you need. And it is more than sufficient if you prepare the whole general awareness part from this course. Okay. So geography separate, if you want to take, it is available. If you want to take the bundle course, that is also available. Moving on to our question number 3. So question number 3 gives you wildlife sanctuary and state, and you have to answer which one is correctly matched. So Bandipur is not in Tamil Nadu. Bandipur is in Karnataka. Okay. And then you have Manas. So Manas is in Assam, not in Uttar Pradesh. Then you have Ranthambore. So this is the correct option. Ranthambore, Rajasthan is your answer. Simlipal is again not in Bihar. It is present in Odisha. So comment me that Manas, Simlipal, Bandipur and Ranthambore, they have a common feature. Okay? So they are national park, that is common, but they have another thing which is common among them. What is that common thing? Comment me on the comment section. Okay. Moving on to the next question, question number 4. So, in which state is the Kanger Ghati National Park situated? Very important national park, and it is situated in Chhattisgarh. Okay, Kanger Ghati National Park. Why is it famous? Why is it important to know about Kanger Ghati? Because it is near the Bastar region, which is regarded as the Naxal area, and it is one of the densest national park, well known for its biodiversity with picturesque landfall and then limestone topography, waterfall and limestone caves. So my dear, this is one of the place in India where you can find karst topography. Okay, so where you can find karst topography, and karst topography is related to limestone caves. Okay, so question can come in karst topography. क्वेश्चन कैन कम, कास्ट टोपोग्राफी कौन से रीजन में पाया जाता है, तो कौन से रीजन में पाया जाता है, तो यू कैन सिंपली से बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज. सो इंडिया में पेंच भी टाइगर रिजर्व है. पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है. ये एक बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में और कुछ पार्ट महाराष्ट्र में प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास मानस है. थोड़ी देर पहले हमने किया था. मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? आसाम में है. नेक्स्ट है नागार्जुन. सो नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये इसका पूरा नाम है. ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, लेकिन ज्यादातर हम इसको यही बोलते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में है. सो नागार्जुन सागर एक्चुअली आपका आंसर भी है, क्योंकि वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है. And then you have Corbett Tiger Reserve, which is present in Uttarakhand and on the banks of Ramganga River. Okay, so near Bareilly and Ramnagar, or you can call Nainital ke paas mein, the Corbett National Park is present. Moving on to question number 6. So nestled amidst the snow-capped peaks of the Himalayas. Snow-capped peak Himalayas एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है सॉल्व करने के लिए. Which national park is home to elusive snow leopard? देखो, स्नो लेपर्ड ना हमेशा स्नो लाइन के ऊपर मिलते हैं, तो जब भी नेशनल पार्क की ऑल्टीट्यूड अराउंड 4200 मीटर तक जाएगी स्नो लाइन तक, तभी आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे, अदरवाइज स्नो लेपर्ड नहीं मिलेंगे. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहां हिमालयाज है ही नहीं. हेमिस नेशनल पार्क हम कंसिडर करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है, वो लद्दाख जम्मू कश्मीर एरिया. पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, हिमालय का कोई सवाल ही नहीं उठता. बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है अगेन. सो सिंपल आंसर है आपका हेमिस नेशनल पार्क. इसको इजी आंसर करना, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ स्नो लेपर्ड देके वहां के नेशनल पार्क्स के बारे में भी पूछ सकते हैं. मैं आपको बता दूं, स्नो लेपर्ड वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय दोनों सेक्शन में मिलते हैं. इसका मतलब स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, इन सब जगह पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग पार्ट. लेकिन एक और एनिमल स्पीशी है जो स्नो लाइन के ऊपर मिलता है, एंड दैट इज रेड पैंडा. सो रेड पैंडा आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हिमालय में. वेस्टर्न हिमालय में वो नहीं मिलता. सो ईस्टर्न हिमालय में अगर मिल रहा है तो सिक्किम में मिल रहा है, अरुणाचल में मिल रहा है और दार्जिलिंग में मिल रहा है.
मेनली सिक्किम, अरुणाचल आप याद रख सकते हो, रेड पैंडा के लिए फेमस है। नॉर्थ ईस्ट में और भी जगह मिलते हैं जैसे मणिपुर, नागालैंड, जहां भी नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज की हाइट बहुत ज्यादा है वहां आपको रेड पांडा मिल जाएगा। ओके, सो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? लद्दाख में। इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया था। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ प्रेजेंट है? लद्दाख में। एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपने बोला ना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व पता है कौन सा है? बोर। और ये कहां पर है, ये टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये आज का सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, पार्टिसिपेट जरूर करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। सो विच स्टेट इन इंडिया होल्ड्स द क्राउन फॉर द मोस्ट नेशनल पार्क्स? सो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कहां पे है? देखो, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में लिखने लगोगे आप कि मैम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी तो है। यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और मध्य प्रदेश में दोनों में 9 और 9 नेशनल पार्क है। लेकिन क्वेश्चन देखो आप, स्टेट, क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी का नहीं है, या क्वेश्चन इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का नहीं है, क्वेश्चन किसका है? स्टेट का। जैसे आप स्टेट देखते हो आपको स्टेट आंसर करना है, इसीलिए आपका आंसर मध्य प्रदेश है। लेकिन मैंने बहुत सारे आंसर की में इसका आंसर बोथ ए एंड बी भी देखा है, तो आपको पता है किन लोगों ने बोथ ए एंड बी आंसर किया है? जिन लोगों ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फर्क नहीं किया। ठीक है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर हमें मध्य प्रदेश है। ए और बी भी चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर स्टेट पूछा है तो आप मध्य प्रदेश के साथ जाओ। ठीक है, सो स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन अकॉर्डिंग टू जनवरी 24 का डेटा जो है, मध्य प्रदेश और अंडमान के पास, दोनों के पास 9 नेशनल पार्क्स है। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स में देखो, यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ नेशनल पार्क है, ये रहा, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। मैडम आप नाम नहीं बोल रहे हो नेशनल पार्क के, नेशनल पार्क के नाम आपको पढ़ने हैं माय डियर, मैंने देखा है पुराने वीडियोस में, मैं सब कुछ डिटेल में बता देती हूँ। आप रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ये नेशनल पार्क्स आपको जूम करके देखना है। मैडम हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको परचम के पीडीएफ बैंक से मिल जाएगी। ठीक है, parchamclasses.in ये वेबसाइट है, या फिर परचम का ऐप आपके मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो अंडमान निकोबार का मैप। अंडमान निकोबार के मैप में थोड़ा आपके लिए बता देती हूँ, नेशनल पार्क सैडल पीक नेशनल पार्क। एक और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, मिडिल आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, देन वी हैव साउथ बटन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क एंड गलेथिया नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स कहाँ हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और मध्य प्रदेश वाले आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें बांधवगढ़ आया था, मैंने आपको बताया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ फेमस क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं व्हाइट टाइगर्स। ओके, सो व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं, इसीलिए ये नेशनल पार्क बहुत फेमस भी है। ओके, सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क्स इन इंडिया। उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, नोन फॉर हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, और इसको 1968 में डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, द पार्क डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द मोस्ट prominent hillock of the area which is said to be given by Lord Ram to Lakshman to keep watch on Lanka. Okay, सो वैसे तो आज अगर देखो तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है और श्रीलंका के साइड में लंका है, तो इतनी दूर से कैसे वॉच करेंगे, बट माइथोलॉजी है तो कोई लॉजिक होगा। लॉजिक अगर आपको पता है आप बता सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। आपको हिंट देती हूँ, इस नेशनल पार्क का नाम चेंज हो चुका है। आज के डेट में इस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क इंडिया में कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। इसका नाम है हैले नेशनल पार्क। सो इससे ये भी पता चला कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ही आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैले नेशनल पार्क। ओके,
तो यहाँ से आप डिस्कशन देख सकते हो. इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड 1936 एज हैली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए. रॉयल बंगाल टाइगर्स. इट इज नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट, लोकेटेड इन उत्तराखंड, और आज के दिन में ये एक टाइगर रिजर्व है. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है देयर इज अ नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स बिग 5 रेसिडेंट्स. बहुत लोग इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देंगे बिग 5 कैट्स में. बिग 5 रेसिडेंट्स, कैन यू नेम द पार्क? सो कौन सा वो नेशनल पार्क है जहां पर बिग 5 अवेलेबल है? तो वो है काजीरंगा. दो तो आपको पता चल ही गए हैं. एक टाइगर रिजर्व की वजह से टाइगर्स, दूसरा काजीरंगा में क्या मिल रहा था? वन हॉर्न राइनोसोरस. बाकी 3 यहां से पता कर लेंगे. बाकी 3 में एलिफेंट्स, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा, और इसमें ये 5 रेसिडेंट्स आपको मिलेंगे. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मरीन नेशनल पार्क्स इन इंडिया. तो देखो, इसमें से आप गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ चुके हो, है ना, और रानी झांसी अभी अभी आपने पढ़ा था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. 2 और है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ. महात्मा गांधी भी आपने पढ़ा था. कच्छ आपको सुन के लग रहा है कच्छ पेनिनसुला में होगा अगर, तो ऑल द अबव इसका आंसर है. ठीक है, ऑल द अबव आंसर है. सारे ही ये मरीन नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है, यहां से आप थोड़ा डिस्कशन ले सकते हो. महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? वुंडूर नेशनल पार्क में लोकेटेड है ये, और उसके अंदर कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. मरीन नेशनल पार्क कच्छ में, गुजरात में है. रानी झांसी मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है. और दूसरा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में है, और रामनाथपुरम में आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. वेयर इज क्योलादियो नेशनल पार्क, फॉर्मरली नोन एज भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, लोकेटेड? भरतपुर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे एग्जाम में, लेकिन भरतपुर नहीं भी दे सकता, तो आपको केवलादियो याद रखना है. कहां पर है? राजस्थान में है. ओके, और ये कॉन्फ्लुएंस पे है, 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है. एक रिवर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, गंभीर, गंभीर रिवर. दूसरा रिवर का नाम आपको ढूंढना है. कमेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा. बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस पूछ देते हो. माय डियर, समय कम है एग्जाम के लिए और बहुत कुछ तैयार करना है. तो अगर मैं आपको कुछ टारगेट दे रही हूँ और आप फटाफट उसको सर्च करके पढ़ के कमेंट कर रहे हो, तो क्या है, एक वीडियो से तो काफी चीजें सीख सकते हैं ना हम. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 13 में. होम ऑफ द मैजेस्टिक एशियाटिक लायन. बहुत लोग बोलेंगे मैडम ये क्या क्वेश्चन दिया आपने, इतना इजी है. यस, ये इजी भी है, और बहुत लोग लायंस और टाइगर्स में फर्क नहीं जानते. शेर, टाइगर्स, सिंह क्या है? लायन. ओके, सिंह को लायन बोलते हैं, और शेर आपका टाइगर है, या शेर को आप बाघ भी बोलते हो. ठीक है, ये सिंह की बात हो रही है. गिर नेशनल पार्क, गुजरात. एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है. क्वेश्चन अगर टफ बनाया जाए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुजरात के कौन से पार्ट में. देखो, गुजरात में ना 2 पेनिनसुलाज हैं. ओके, इस ऊपर वाले पेनिनसुला को बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला, नीचे वाले पेनिनसुला को बोलते हैं काथियावाड़ पेनिनसुला. इस एरिया में गिर नेशनल पार्क प्रेजेंट है. तो आंसर क्या होगा? काथियावाड़ पेनिनसुला में गिर नेशनल पार्क प्रेजेंट है. ओके, टफ और इजी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मैंने आपको ब्रीफ किया. गिर नेशनल पार्क, द मैजेस्टिक होम टू एशियाटिक लायन, इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. It is situated close to the town of Talala-Gir and falls within the districts of Junagadh, Amreli, Gir Somnath. तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ. अभी मैंने आपको दिखाया था, ये है हमारा कच्छ पेनिनसुला, और ये नीचे वाला है काथियावाड़. यहाँ है आपका गिर नेशनल पार्क. काफी बड़ा नेशनल पार्क है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. नेस्ल्ड अमंग जायंट्स, व्हिच नेशनल पार्क इन इंडिया टेक्स द क्राउन फॉर बीइंग द स्मॉलेस्ट? तो हमारा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? थोड़ी देर पहले किया था, हैले नेशनल पार्क लद्दाख में. और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया?
साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर, जिसका स्टेट आपको बताना है कमेंट में, है ना। तो द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज साउथ बटन। और कहाँ प्रेजेंट है मैंने आपको दिखाया था, यहाँ। सो हियर इस पार्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द 9 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, एंड दैट इज वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो वन विहार से आप सोचोगे जहां फॉरेस्ट होगा ये वो, लेकिन वन विहार लेक के आसपास लोकेटेड है भोपाल में। भोपाल में मैंने आपको पढ़ाया था एक रामसार साइट है जिसका नाम है भोजताल। रामसार साइट कितने हैं इंडिया में? 80 में से एक आप जान गए हो भोपाल में है, तो वहीं पर आपका वन विहार नेशनल पार्क भी है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। सो वन विहार इज लोकेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। इट इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द फेमस अपर लेक ऑफ भोपाल, also known as the बड़ा तालाब, which is the Ramsar site and one of the two lakes of Bhoj wetland. Bhoj wetland Ramsar site है, बड़ा तालाब में है ये। और it has a unique distinction of being a combination of national park and zoos, rescue center, breeding center, vital species के लिए। तो काफी यूनिक एरिया है, काफी चीजें हैं, वेटलैंड्स भी है, नेशनल पार्क्स भी है, ब्रीडिंग सेंटर्स भी है। कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव लायंस, लायंस जू में है, वाइल्ड में सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? गिर में, और कहीं पर भी नहीं। स्लॉथ बियर, टाइगर, पैंथरस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का भी एरिया है क्योंकि जू है, ब्रीडिंग सेंटर है। ओके, वल्चर्स भी दिखाई देते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारहसिंगा एंड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। जाते जाते एक बार और आपको बोल के जा रही हूँ, प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। एसएससी जनरल अवेयरनेस के लिए सब कुछ, सारा जीके यहाँ पर कवर हो जाएगा। लेट मी टेल यू, हो सकता है इस वाले वीडियो का फॉर्मेट बहुत लोगों को ना पसंद आए, हो सकता है पसंद भी आए, लेकिन हमेशा ना डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं होता या फिर आपकी कंडीशन नहीं होती। नाउ डेज आई एम नॉट वेल, मेरे लेग में कुछ प्रॉब्लम है, सो आई कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया। आई होप आप कोऑपरेट करोगे। 4-5 वीडियोस के बाद आपको नॉर्मल कंडीशन वाली वीडियोस मिलने लगेगी। ओके, सो डोंट माइंड एंड प्रिपेयर वेल। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जरूर उनको आंसर करो। ओके, एंड जॉइन द कोर्स, दिस विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।